rate of change of y with respect to x. So dy by dx is, it is rate of change of y with respect to x. Why it is necessary? Why it is necessary? It can be used to find many physical quantities. तो पहला जो रेट ऑफ चेंज है, तो आप मुझे बताओ कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी? तो वेलोसिटी की अब दो डेफिनेशंस हम लोग, वेलोसिटी एक डिफाइन करेंगे एवरेज वेलोसिटी, और दूसरा लिखेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं व्हाट इज द एवरेज। एवरेज वेलोसिटी इज सिंपली x फाइनल माइनस x इनिशियल बाय टाइम, where x final is final position and x initial is initial position. लेकिन इंस्टेंट के लिए आप क्या बोलोगे? v इंस्टेंट के लिए बोलोगे dx अपॉन dt। इसको पढ़ सकते हो बेटा? तो मेरे साथ पढ़ो कि इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ x, x मतलब पोजीशन, and with respect to time. So rate of change of position with respect to time is known as velocity, right? Rate of change of position with respect to time is known as velocity. अब मैं बोलूंगी कैन यू राइट मी द फॉर्मूला ऑफ इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन? तो मैं आपसे दो तीन चीजें लिखवाता हूं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। कैन यू राइट फॉर्मूला ऑफ, पहला एवरेज एक्सेलरेशन। ये फिजिक्स का क्लास बिल्कुल नहीं है बेटा, ये मैथ्स का क्लास है, लेकिन बिना मैथ्स के फिजिक्स चलता नहीं है। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, थर्ड एवरेज फोर्स, एंड फोर्थ इंस्टेंटेनियस फोर्स। ठीक है? जल्दी से लिखिए तो बेटा। तो किसी ने आपको ये लिखना है, मुझे बताइए कि एवरेज एक्सेलरेशन और क्लास हमेशा एक्टिव होता है। तो क्लास के अंदर जब भी बच्चे बैठते हैं तो मैं तो उनको बोलता हूँ आप बोलते रहो और पूछते रहो, ठीक है? अभी हम लोग बोल नहीं सकते, लेकिन चैट पे लिखते रहो। तो somebody has written, Sambhavi has written the formula correctly, Pranjal has written the formula correctly, very good। चारों लिखिए बेटा खटाखट।
तो बेटा एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा, v माइनस यू अपॉन टी. Final velocity minus initial velocity upon time. What will be the this is average acceleration. Average instantaneous acceleration will be dv upon dt. Rate of change of velocity with respect to time. Can you define the force? So average force is change in momentum. Newton's law आपने पढ़ा होगा, तो न्यूटन ने बोला कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज फोर्स, एंड दैट्स द ब्यूटी. You are able to write the formula as soon as you read the definition. So wherever you read a definition, rate of change, you will be able to write in form of d upon something. And most of the time we as a human is worried about time. So most of the places the rate of change is with respect to time. So what is the instantaneous force is dp upon dt. So I am giving you freedom to write the formula without even looking any book under this universe. If you remember correctly, what is the meaning of dy by dx? So meaning of dy by dx, this is the first meaning of dy by dx is, what is the first meaning of dy by dx? It is rate of change of y with respect to x. This is rate of change of y with respect to x. ये y का rate of change है with respect to x. So whenever you are looking for instantaneous changes, when the input has changed by the small quantity, then you can use differentiation. I come back to my first question, y is equal to x square. ठीक है बेटा, मैंने बोला कि calculate the value when x changes to x plus delta x, and I took x as 2 and delta x as 0.01. I told you to calculate the value of y when x is 2 and x is this thing 2.01. और हम लोगों ने पूरी मेहनत की और हमने बताया कि इसको y प्लस डेल्टा y लिख देते हैं. y1 y2 लिखा था, याद है ना? अभी मैं इसको डेल्टा y लिख देता हूं. तो डेल्टा y क्या आ गया? 4 डेल्टा x सॉरी x स्क्वायर प्लस, मैं कर ही लेता हूं, डेल्टा x का स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा x माइनस x स्क्वायर, ये कैंसल हो गया, आ गया 2x 2x इंटू डेल्टा x प्लस डेल्टा x का स्क्वायर. ठीक. If delta x is very small, then delta x का square will be much more smaller. 0.01 का स्क्वायर 0.01 के स्क्वायर से क्या होगा? बहुत ज्यादा छोटा होगा बेटा. इसको निगलेक्ट कर दें तो क्या आ जाएगा? 2x डेल्टा x अपॉन डेल्टा y. डेल्टा y अपॉन डेल्टा x इज 2x. तो हम लोग बोल सकते हैं कि dy by dx इज क्लोज टू 2x, राइट? अब इसका मतलब बताते हैं. किसी ने बोला कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकालो,
तो कोई बंदा क्या करता, सीधे सीधे इसको डिफरेंशिएट करता और बोलता कि 2x आ रहा है, तो चेंज इन y कितना आएगा बेटा, 2x इंटू डी एक्स। x का वैल्यू 2 था और डेल्टा x का वैल्यू क्या था, बोलेगा कि y 4 था कब, जब x 2 था, y था 4.04 जब x क्या था, 0.01 प्लस 2 था, या रेदर ऐसे लिख लो 2.01 था, इसी चीज को हमने 2 प्लस 0.01 लिखा। तो 0.01 इतना भी स्मॉल नहीं है, तो कुछ पार्ट मेरा छूट रहा है, लेकिन स्टिल इट्स अ गुड अप्रोक्सीमेशन, राइट, कि आप सीधे सीधे बोल पा रहे हो कि 4.04 था। अब इस 2x का फायदा क्या हुआ ये समझते हैं कि dy by dx इज इक्वल टू 2x, कब व्हेन I इज x स्क्वायर। इसका फायदा क्या हुआ कि कल के डेट में तुमसे कोई वैल्यू बोलता है कि फाइंड वैल्यू ऑफ y when x is 5.01। अब तुम बेटा वरीड नहीं हो क्योंकि तुमको पता है कि dy by dx किसके बराबर था, 2x के बराबर था, कब, जब y x स्क्वायर। तो तुम बोलोगे यार 5 पर वैल्यू हमको पता है कितना होगा, 25, dy कैलकुलेट कर लेते हैं, 2 इंटू 5 इंटू dx एंड dx इज 0.01। तुम बोलोगे इसका वैल्यू हो गया 25.1। अब एक मशीन आ गया जो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के किसी भी रेट ऑफ चेंज को अगर बहुत स्मॉल है, अगर कोई बोले x 6.001 निकालो, तो तुम बोलोगे यार 36 तो पक्का होगा, चेंज निकाल लेते हैं, 2 इंटू एक्स 6 और डेल्टा एक्स क्या है, 0.001 है, तुम बोलोगे 12 इंटू 0.001 0.012 36.012। मैंने यही तो बताया कि dy by dx will give you an output which gives you rate of change of y with respect to x या one variable with respect to another variable। तो इतनी बातें अगर तुम नहीं भी समझ रहे हो डिटेल में तो याद रखो कि what is the meaning of dy by dx, rate of change of y with respect to x। बट मैंने कोशिश की आपको ये समझाने की कि what is the use of this particular operator dy by dx। so I told you it is used to find rate of change of y with respect to x, ठीक है, this is used for finding rate of change of y with respect to x। what is the second meaning? तो जल्दी से, मेरा ये काम नहीं है, मुझे आपको सिर्फ मैनुअल डिफरेंशिएशन सिखाना है, बट मैं कोशिश कर रहा हूं कि शुरू से आपको कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो जाए। तो सेकंड मीनिंग क्या होता है ये समझते हैं। कभी स्लोप वर्ड सुने हो क्या, स्लोप? तो dy by dx दूसरा देता है स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। देखो बेटा दोनों का मीनिंग शायद सेम है। पहले एक स्ट्रेट लाइन लो, एक स्ट्रेट लाइन लेते हैं, तुम लोगों ने स्ट्रेट लाइन बहुत बनाया होगा क्लास 10th में। y इज इक्वल टू, मान लो ले लिया हमने
3x अपॉन y इज इक्वल टू 3x माइनस 5, ऐसा एक लाइन है। अब इसके स्लोप का क्या मतलब है? स्लोप का मतलब होता है टेंजेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर एंगल, टेंजेंट ऑफ द एंगल मेड बाय पॉजिटिव x एक्सिस, मेड बाय द लाइन, तो छूट ही गया, मेड बाय द लाइन विथ पॉजिटिव x एक्सिस। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्लोप? कि tan अल्फा का वैल्यू हमें इस लाइन का स्लोप देगा। अब बेटा समझो, इन दोनों को सेम कॉन्टेक्स्ट में समझते हैं। यहां पर मान लेते हैं कि x कोऑर्डिनेट था x1 और y कोऑर्डिनेट था y1, ठीक। यहां पर x कोऑर्डिनेट था x2 और y कोऑर्डिनेट था y2। अगर मैं पूछूं कि x जब x1 से x2 में गया तो x में कितने का चेंज आया? x2 माइनस x1 का आया ना बेटा, एंड दैट इज इक्वल टू दिस डिस्टेंस, एंड ये सेम होगा क्योंकि मैं पैरेलल टू x एक्सिस और y एक्सिस गया हूं। इसमें कितने का चेंज हुआ? y2 माइनस y1 का। अगर मैं बोलूं कि ये एंगल और ये एंगल सेम हुआ तो गलत है क्या? है ना। अगर दो लाइन पैरेलल है तो ये एंगल सेम होगा, ठीक है। तो मैं पूछूं कि व्हाट इज tan अल्फा, तो तुम मुझे क्या बोलोगे? y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। क्या ये रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x नहीं है? है ना बेटा। इसलिए इसको हम लोग डेल्टा y अपॉन डेल्टा x लिख पा रहे हैं। अच्छा, स्ट्रेट लाइन के साथ एक बहुत अच्छा फायदा है, स्ट्रेट लाइन is a curve with constant slope. Straight line is a curve with constant slope. इसका मतलब है कि मैंने यहां पर इसका स्लोप निकाला या कहीं और पे निकालेंगे, फर्क नहीं पड़ेगा। स्लोप पॉजिटिव है कि निगेटिव है? तो x के बढ़ने पर y भी बढ़ रहा है, इसलिए स्लोप क्या है? पॉजिटिव है। इस चीज को हम लोग बोल सकते हैं राइज, इस चीज को बोल सकते हैं रन। तो राइज अपॉन रन इज द स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। तो दूसरा मतलब होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। अब कोई बच्चा है वो सोचेगा ऐसा इसका कोई फायदा ही नहीं है, देयर इज नो यूज ऑफ इट, राइट। बिकॉज ये तो हमको पता है यार, बहुत आसानी से हम लोग ऐसे ही जोड़ के निकाल देंगे, बट थिंक ऑफ द कर्व विच इज अ बिट डिफिकल्ट। अब पूछे कि यहां पर स्लोप क्या है, तो तुम क्या करोगे? यहां पर टेंजेंट खींचोगे और ये एंगल मेजर करोगे, या सीधे सीधे तुम क्या कर सकते हो? इस कर्व को डिफरेंशिएट कर दोगे, इसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, और वहां पर ये पॉइंट रख दोगे x इज इक्वल टू x1, तुमको निकल जाएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो यहां पर तुम इमेजिन कर सकते हो कि हर एक इंस्टेंट पर
हर एक इंस्टेंट पर जो स्लोप ऑफ द टेंजेंट है इट इज चेंजिंग and hence you require differentiation. भाई मैंने इतना टाइम ना सिर्फ आपको 2 लाइन समझाने के लिए लिया है, आप पता नहीं उसको कितना अप्रिशिएट कर पाओगे, लेकिन याद जरूर कर लेना कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन के 2 मीनिंग आते हैं, और ये बार बार यूज होगा आपका रेट ऑफ चेंज निकालने के लिए, और दूसरा स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए। ठीक है, डिफरेंस क्या होता है ना, समझने और नहीं समझने में डिफरेंस क्या होता है। आपके कोई भैया दीदी अगर इंजीनियरिंग या मेडिकल पढ़ रहे हैं, आप उनसे पूछिए कि 3 का पावर 0 1 क्यों लेते हैं, तो शायद वो ना समझा पाए। As a 11th class student, if you start understanding the basic concept, IIT and medical becomes easier. क्योंकि लाइफ में आपको सिर्फ रट नहीं लेना है, कुछ चीजें तो याद करनी पड़ती हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि डिफरेंशिएशन हमें क्या दे रहा है। इससे फायदा क्या होगा कि फिजिक्स का कोई भी नया फॉर्मूला आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर उसमें रेट ऑफ चेंज है तो। जैसे मैं बोलूं कि आप लोगों ने फैराडेज लॉ पढ़ा होगा, तो फैराडेज लॉ होता था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विल गिव मी इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब मैं बोलूं फ्लक्स को मैं फाई से रिप्रेजेंट कर रहा हूं और इसको टाइम से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो क्या तुम मुझे ईएमएफ का फॉर्मूला दे सकते हो? तो बोलोगे बिल्कुल। ईएमएफ के 2 डेफिनेशन होंगे, एक एवरेज वाला तो वो ऐसे लिख देंगे, और एक इंस्टेंटेनियस वाला वो ऐसे लिख देंगे। तो in turn you will be able to write across the domain the formulas. ठीक है, अब हम लोग चलते हैं डिफरेंशिएशन के कुछ सर्टेन फॉर्मूलाज और रूल्स पे जिसको आप याद रखेंगे। तो मैं पूछूं व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कांस्टेंट? कांस्टेंट का डेफिनेशन क्या है? And what you feel the differentiation of a constant should be? कांस्टेंट का डेफिनेशन क्या है, और तुम्हें क्या लगता है कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होना चाहिए? तो इसमें 2 वीक बोली, किसी ने बोला नहीं कि कांस्टेंट का डेफिनेशन क्या होता है। तो कांस्टेंट का डेफिनेशन क्या होता है बेटा? समथिंग दैट डज नॉट चेंज, राइट? समथिंग that does not change. It means the constant could be 2 types, fixed constant या arbitrary constant. जैसे कहीं मैं 5 लिख दूं
तो ये फिक्स कांस्टेंट है। अगर कहीं मैंने c लिखा तो ये कोई भी कांस्टेंट है जो जिसके बारे में हमें पता नहीं है, उसको हम लोग बोलते हैं आर्बिट्ररी कांस्टेंट। What we think, what should be the rate of change of constant? What should be the rate of change? अच्छा, जो चेंज ही नहीं कर रहा है उसका रेट ऑफ चेंज क्या होगा? तुम्हारी गाड़ी खड़ी है तो उसका पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, तो उसकी वेलोसिटी क्या है, स्पीड क्या है? When your car is stand still or your bicycle is stand still, what is its rate of change? And somebody has said it right, differentiation of a constant is 0. So constant का differentiation 0 होता है। अब मैं आपको कुछ फॉर्मूलाज बताऊंगा जिसको आपको लर्न करना है और अप्लाई करना है। तो पहला फॉर्मूला है dx का पावर n dx। तो आपने देखा ना कि x रेज टू स्क्वायर का डिफरेंशिएशन निकालने के लिए हम लोग कितनी मेहनत करनी पड़ी। तो हर बार अलग अलग नंबर के लिए हम स्क्वायर, क्यूब, पावर 5 या स्क्वायर रूट तो करते नहीं रहेंगे, इसलिए हम लोगों ने x के पावर n का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन सीखा। वो क्या होगा, n इंटू x का पावर n-1 होगा। इसको आपको याद करना होगा और अप्लाई करना होगा। अब यहां पर जो समझने वाली बात है कि क्या आपने सिर्फ x का फॉर्मूला सीखा? नहीं, देखिए बेटा, यहां पर वेरिएबल का नाम क्या है, x। इस वेरिएबल को अगर t कर देंगे तो नीचे वाला भी अगर t है तो हम लोग लिख लेंगे np n-1। तो बाय चेंजिंग द नेम ऑफ वेरिएबल फॉर्मूला डज नॉट चेंज। चेंजिंग द नेम ऑफ, किसी को मान लो x अच्छा नहीं लग रहा है, कोई बोल रहा है कि पोजीशन को हम x नहीं लिखेंगे p लिखेंगे, तो यहां पर भी p होना चाहिए, यहां पर भी p होना चाहिए। यहां पर अगर शाहरुख खान तो यहां पर भी शाहरुख खान, यहां पर कैटरीना कैफ तो यहां पर कैटरीना कैफ। द वेरिएबल कैन बी नेम्ड एज एनीथिंग बाय चेंजिंग द नेम ऑफ वेरिएबल। Variable formula does not change. तो हमारे आज के लेक्चर का अगर टेक अवे देखोगे तो क्या है, सिर्फ 2 पॉइंट, व्हाट इज इट्स मीनिंग एंड व्हाट आर द फॉर्मूलाज व्हिच वी आर गोइंग टू गिव यू नाउ। बस वही है, 20 की चीजें मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बताई। आपको समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो भी अच्छी बात है। हमेशा देखोगे जितना क्लास में किया ना उसको 5 बार जरूर पढ़ोगे तो आपको फायदा करेगा, ठीक है। तो dx का पावर n, dx इज n इंटू x का पावर n-1। अब इस फॉर्मूला को हम लोग निकालना सीखते हैं। तो अगर हम लोग ऐसे निकालना हो तो क्या करेंगे सर, या ऐसे लिखते हैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। बहुत मेहनत की थी पे, तो d अपॉन dx अगर इधर लगाया है ना तो इधर भी लगा देंगे। ऑपरेटर अपना जब काम करता है तो चला जाता है। तो देखो मैंने लेफ्ट में क्या लगाया, d अपॉन dx, तो राइट में भी क्या लगा दिया, d अपॉन dx। ऑपरेटर जैसे y इज इक्वल टू 5 + 3 है तो क्या हो जाता है 8। तो जब d अपॉन dx अपना काम करेगा तो वो चला जाएगा। इस फॉर्मूला से मैच करते हैं बेटा कि क्या है। तो मुझे ऊपर नीचे एक ही वेरिएबल दिख रहा है, बात सही है। x की जगह x दिख रहा है और n की जगह 2 दिख रहा है, तो मैं n की जगह 2, x की जगह x और 2 - 1 लिखूंगा, तो क्या आ गया 2x। याद है हमने कितनी मेहनत की थी इस चीज को समझने के लिए कि रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x,
तो इंस्टेंटेनियस चेंज, अगर आपको y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का निकालना है तो हमें एक मशीन मिल गया, वो हमेशा किसके बराबर होगा, 2x के बराबर होगा, है ना। तो x इज इक्वल टू 2 पर निकालना है तो हम लोगों ने x को 2 रख दिया था और dx 0.01 रख दिया था, क्योंकि हमें वैल्यू निकालना था किसका, 2.01 का निकालना था। तो हम लोगों ने 2.01 में x को 2 ले लिया था और dx को क्या ले लिया था, 0.01 ले लिया था या 0.01 ले लिया था। तो दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। नाउ x का पावर n अपॉन x इज n इंटू x का पावर n माइनस 1। तो सबसे पहले हम लोग इसी फॉर्मूला को मास्टर करेंगे। फॉर्मूला एक ही है, इसलिए कोई दिक्कत उसमें होनी नहीं चाहिए। तो पहले देते हैं आपको कुछ क्वेश्चंस। फाइंड dy by dx for y is equal to x cube, y is equal to root x and c y is equal to 1 by root x। तो मैं बहुत ज्यादा आपको टाइम खराब ना करके चीजें कुछ कुछ बताते चलूंगा, इसलिए इसको बताइए आप। तो जल्दी से निकालेंगे dy by dx बेटा। जो बायो के बच्चे हैं बेटा, एकदम जरूर ये इसको दिल से सीखोगे, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। बिना डिफरेंशिएशन के तुम्हारा फिजिक्स हिलेगा नहीं। तो फाइंड dy by dx, तुम्हारे लिए फॉर्मूला एक ही अभी मैंने बताया है, y is equal to x raised to n, then dy by dx is आपको ये कॉपी करना है ना, सिर्फ आपको ये इन फॉर्मूलाज में ये कॉपी कर लेना है। तो यू हैव टू जस्ट आइडेंटिफाई। सही है गौतम, काफी लोगों ने बनाया है बेटा, हम देखते बैठ कर देखेंगे तो पता चलेगा। तो काफी लोग बना रहे हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर लिखकर भेजा करो। केशव गुप्ता बेटा गलत है, 1/x तो किसी का नहीं आएगा बेटा। बहुत अच्छा है बेटा। ये एसपी झा कौन है भाई, अनुष्का, वेरी गुड अनुष्का। एसपी झा कौन है, नाम अपना लिखा करो बेटा। चलो काफी लोगों ने कर लिया, वेरी गुड। अर्जित, तन्मय, बताइए क्या हुआ। काफी लोगों ने बना लिया है।
काफी बच्चे बना पा रहे हैं, काफी बच्चे बैठे हुए हैं, सब लोग बनाओ। मैं बताता हूं बेटा, देखो काफी लोगों ने बना लिया है, ये अच्छी बात है कि काफी लोगों ने बना लिया है। लेट्स जस्ट फर्स्ट मैच फ्रॉम दिस फॉर्मूला। यहां पर n का वैल्यू 3 है, यहां पर n का वैल्यू क्या है बेटा 1/2, और यहां पर n का वैल्यू है -1/2। इतना सबको अगर क्लियर है तो इस फॉर्मूले को कॉपी कर देना है। dy by dx dx³ अपॉन dx, ऑपरेटर अपना वर्क करेगा, n की जगह 3 और 3 - 1 is 2। So rate of change of x³ with respect to x is 3x square। ठीक है, अब ध्यान देना बेटा दूसरा क्वेश्चन का, y is equal to √x, dy by dx रहने देते हैं, d√x अपॉन dx 1/2√x। n की जगह मैंने 1/2 डाला बेटा, है ना। सिमिलरली y is equal to 1/√x -1/2 x का पावर 3/2। सिर्फ इस फॉर्मूला के अंदर हम बिठाते जा रहे हैं। We are just putting the things inside the formula। क्लियर है बेटा। तो कुछ क्वेश्चंस और प्रैक्टिस के लिए देते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो जिन लोगों को क्लियर नहीं था वो एक बार देख लेना बेटा कि मैंने क्या किया है। जहां पर भी मुझे माइनस साइन दिख रहा है ना, मैं उसको नीचे लेकर आ जा रहा हूं पावर में। अब देखो, अगर तुम्हें कहीं दिखता है du प्लस v, दो फंक्शन दिख रहे हैं x, तो इसको लिखोगे dux प्लस dv अपॉन dx, प्लस और माइनस को ऐसे लिख लेंगे। ठीक है बेटा। अब लिखो y इज इक्वल टू, मैं इसको ऐड करके दे रहा हूं, x³ 1/√x प्लस x का पावर 7। ये आपका फोर्थ क्वेश्चन है ना। फाइंड dy by dx। फिफ्थ ले रहे हैं, y इज इक्वल टू x4 प्लस 6। इसको कीजिए तो बेटा, तो बेटा इसको देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। तो थोड़ा तुमको टाइम लगेगा, लेकिन
बहुत डिफिकल्ट ढंग से मैं बता नहीं रहा आपको, तो प्रैक्टिस कर लेने का है। मैं आपको जो जो फॉर्मूलाज बता रहा हूँ, तो जहां प्लस साइन आएगा वहां पर प्लस साइन को सेग्रीगेट कर देंगे, जहां माइनस साइन आएगा वहां पर माइनस साइन को सेग्रीगेट कर देंगे। देखते हैं बेटा, dy बाई dx, d ऑफ एक्स क्यूब x का पावर -1/2 लिख लो। अलग अलग कर लो बेटा पहले, तो जैसे प्रैक्टिस प्रॉपर करोगे कुछ दिन के बाद क्या हो जाएगा, इसको डायरेक्ट हम लोग कर देंगे ना। लेकिन बोर्ड एग्जामिनेशन में तो अच्छे से नहीं लिखना पड़ता है। 3x² -1/2 x का पावर -3/2 प्लस 7x�6। थोड़ा और इसको अच्छे से लिख लें। तो dy by dx comes as this। ये तो बच्चा वाला था बेटा, x⁴ क्या होगा, फोर एक्स क्यूब, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो 0 होता है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। अब देखो इसका यूज क्या पड़ेगा, मैं वो बताता हूं। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होगा। नेक्स्ट देखते हैं बेटा इसका यूज क्या पड़ेगा। देखेंगे, इफ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट is given as x is equal to t cube minus 3t square plus 5t plus 6। देखो बेटा जब कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है ना तो उसको एज इट इज बाहर निकाल लेंगे। यहां पर लिख सकते हो कांस्टेंट इनटू फंक्शन है, मल्टीप्लाइड है तो कांस्टेंट को बाहर निकाल, ठीक है। जो इफ कांस्टेंट इज मल्टीप्लाइड कांस्टेंट विल कम आउट, इफ इट इज एडेड इट्स डिफरेंशिएशन विल बी 0। तो इस रूल को लिख लेना बेटा। अब बोल रहे हैं फाइंड वेलोसिटी एट t is equal to 2। अब देखो बेटा क्या लिखोगे, dx अपॉन dt, यही वेलोसिटी होता है। अब क्या फायदा है ना कि अगर हमें किसी का मोशन टाइम के फंक्शन में पता है तो हम लोग इसको लिखने वाले हैं। दिख रहा है बेटा कि मैंने माइनस साइन को एज इट इज बाहर निकाल लिया और 3 को भी बाहर निकाल लिया, मैंने प्लस साइन को भी एज इट इज बाहर निकाल लिया और 5 को भी बाहर निकाल लिया, और हम कांस्टेंट को डिफरेंशिएट कर रहे हैं सिर्फ कहां, जहां पर वो प्लस साइन में। अब क्या हो गया, 3t² माइनस 3 इंटू 2t प्लस 5 इंटू 1 dt बाई dt। ऐसे कट मत कर देना, कैसे कर रहे हैं बेटा, यहां पर n की जगह 1 है, तो दिस विल कम एज 1 इंटू t का पावर 0 विल कम एज 1। तो कट नहीं करेंगे ऑपरेटर को, इवन
कट करने की जरूरत भी है तो भी नहीं। अब अच्छी बात क्या है कि तुमको वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 चाहिए तो t इक्वल टू 2 रख लेंगे, t इक्वल टू 3 चाहिए तो 3 रख लेंगे, t इक्वल टू 4 चाहिए तो 4 रख लेंगे, t इक्वल टू 0.1 चाहिए तो 0.1 रख लेंगे। नाउ वी हैव वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, so we can not only tell the velocity at t equal to 2 but we can also tell the velocity at any instant। अब समझो कि हम यहां से कुछ चीज भेजते हैं तो कुछ पाथ डिफाइन करके भेजते हैं बेटा, और हम लोग वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सब पता करते रहते हैं। कैसे पता करते रहते हैं? क्योंकि हम लोगों ने उसके पाथ को डिफाइन कर रखा है, उसके फंक्शन को डिफाइन कर रखा है, तो हमें वेलोसिटी पता चल गया। अब कोई बोलता है एक्सेलरेशन निकाल लो इसका, तो क्या करते बेटा? dv by dt, फिर से सेम काम। So you are able to get the value of velocity and acceleration as a function of t। अब जिस टाइम पर पूछेगा, अगर कोई t इक्वल टू 2 पर पूछ रहा था तो हम क्या करते हैं, इस फंक्शन के अंदर जहां जहां t दिख रहा था वहां पर क्या रख देते हैं। अगर 3 पे पूछता तो 3 रख देते, 4 पे पूछता तो 4 रख देते। जो भी टाइम पूछेगा मेरे पास एक आउटपुट आ गया है जिससे कि हम रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन बता पा रहे हैं। हमारे पास एक आउटपुट आ गया है जिससे कि हम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी बता पा रहे हैं। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन एंड व्हाई वी डू इट। ठीक है, तो हम लोग जल्दी से 2 और रूल सीखते हैं और सिर्फ आप लोग खुद से फंक्शन बनाकर जोड़ घटाव वाला डिफरेंशिएट करोगे। देखो बेटा, अब आता है u इंटू वी के फॉर्म का होगा तो क्या करेंगे, तो इसको समझो। मेमोरी टेक्निक, ये आपका 4th फॉर्मूला होगा, मैं एक बार लास्ट में लिख दूंगा। u और v दो फंक्शन है जिसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो पहले u को अंदर डालो और v को डिफरेंशिएट करो। अब ये समझो कि d बाई डी एक्स एक जेल है जिसमें सिर्फ एक ही कैदी रह सकता है और 2 कैदी हैं हमारे पास u एंड v। तो u को बाहर डाले थे और v को क्या किए थे, अंदर डाले थे। अब v को बाहर रखो और u को अंदर डाल दो। तो अगर मैं पूछूं कि सेम लॉजिक से uvw लिख सकते हो क्या? मेमोरी टेक्निक है कि d बाई डी एक्स एक ऐसा जेल है जिसमें कि सिर्फ एक ही कैदी जा सकता है और uvw 3 कैदी हैं, तो इसको कर सकते हो क्या? तो क्या करोगे, uv को बाहर रख के w को अंदर डालिए। अब u और w को बाहर रख के v को अंदर डालिए। और फिर किसको नहीं अंदर डाले हो, u को नहीं डाले हो। तो मैं तुमको 2 लॉजिक्स बताता हूं कि क्यों कांस्टेंट को हम लोग बाहर रख देते हैं। सपोज करो 3x था, इसका डिफरेंशिएशन था, या 3x स्क्वायर था, इसका डिफरेंशिएशन था। कोई बच्चा बोले कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो 0 होता है। बेटा ये एडिशन में नहीं है, प्रोडक्ट में है। तो कोई इसको ऐसे लिख सकता था और डिफरेंशिएट करता, बेटा डिफरेंशिएट करता तो क्या आ जाता, 2x 2x और 2x कितनी बार, 3 बार। उल्टा करके लिखें
तो ये और कुछ नहीं, ऐसा ही था ना। तो इसलिए कांस्टेंट जब मल्टीप्लाई होता है तो बाहर चला जाता है। दूसरा मैं बताता हूं बेटा, दूसरा तरीका बताता हूं, डी सी इंटू एफ एक्स था। अब u इंटू वी तुमको आता है बेटा, तो c को बाहर रखो और एफ एक्स को डिफरेंशिएट कर दो। एफ एक्स को बाहर रखो और c को डिफरेंशिएट करो। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा? 0। And this is why when the constant is multiplied in a function, we take the constant as it is out. So आज क्या करोगे, पहले वाले असाइनमेंट ही करोगे, मैं कोई नया असाइनमेंट नहीं दे रहा हूं, और अपने मन से कुछ फॉर्मूलाज लिखकर उसको डिफरेंशिएट करना, जो भी तुमको मन करे x रेज़ टू n का। लेकिन मैं क्या क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूं वो भी बता देता हूं। तुम्हें ये फॉर्मूलाज याद होने चाहिए। तुमको ये भी याद होना चाहिए, नेम ऑफ वेरिएबल शुड बी सेम। तो अगर यहां पर x है तो यहां पर भी x होना चाहिए, अगर यहां पर t है तो यहां पर भी t होना चाहिए, अगर यहां पर शाहरुख खान है तो यहां पर भी शाहरुख खान ही होना चाहिए। तो चेंजिंग द नेम ऑफ द वेरिएबल, इट कुड बी एनी नेम, नो इश्यूज। अगर एक फंक्शन जोड़ या घटाव के फॉर्म में है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में है, तो हम उस साइन को अलग अलग आसानी से सेग्रीगेट कर सकते हैं। ये हो गई दूसरी चीज। तीसरी चीज मैंने बताई आपको, डी यू इंटू वी डी एक्स। चौथी चीज आप रट लीजिए, एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, तो क्या आ जाएगा? तो हम लोगों का टेक अवे बस ये 4 फॉर्मूला है। आज पूरा दिन है आप इस 4 फॉर्मूला को याद करने के। देयर आर 4 फॉर्मूलाज एंड देन देयर इज अ क्लास वर्क। उस क्लास वर्क में जितने क्वेश्चन मैंने करवाया ना, उसको आपको ध्यान से करना है। किसी को कुछ डाउट है तो मैं अनम्यूट कर रहा हूं, आप पूछ सकते हो। यू कैन आस्क द डाउट्स। ठीक है बेटा, तो मैं सबको अनम्यूट कर रहा हूं। हाँ बोलिए बेटा, किसी को डाउट है तो। हेलो, कोई भी पूछ सकता है। हेलो, मैं ऊपर से पूछते चला जाता हूँ। अरुणिमा? नो सर। शायोनी? नो सर। प्रकृति? नो सर। प्रीति? नो सर। आदित्य? शराफ? नो सर। तो मतलब ऑल ऑफ यू आर जस्ट गो थ्रू इवन ना। देखो सबसे बड़ी मेरी चिंता क्या होती है ना, जब आपको समझ में आ जाता है, समझ में आ जाएगा तो आप नहीं पढ़ोगे बेटा। ध्यान रखना है कि अगर समझ में भी आ गया ना तो कॉपी 5 बार पढ़नी है।
मेरी बात समझ में आ रही है क्या आपको? क्योंकि लोगों को 2-2 साल बीत जाते हैं बेटा, मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन नहीं समझ में आता। तो होपफुली ये 4 फॉर्मूलाज तो आप याद कर लोगे। दिस इज द ओनली टेक अवे फ्रॉम होम, बट द रेस्ट ऑफ थिंग आई ट्राइड टू कन्विंस यू दैट व्हाई द डिफरेंशिएशन इज नेसेसरी। ठीक है निशा, प्रवीण, कोई डाउट है? विभूति, विवेक, शांभवी? नो सर। चलिए बेटा, तो फिर आज के लिए अलविदा। कल आपका डाउन सेशन का होगा, तो ट्रिगो पे अभी बनाते रहिएगा, ठीक है? इसको बनाने की जरूरत नहीं, एक 1.5 घंटा पढ़ लीजिएगा तो 5 बार पढ़ पाइएगा, ठीक है? चलिए बाय बाय।